सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। अब आज मैं ऐसा मैसेज लिख दूंगी कि सब लोग टाइम पे ज्वाइन करें ताकि लेक्चर टाइम से स्टार्ट हो जाए। और आप लोग अपना नाम मैंने जैसे लिख दिया है चैट बॉक्स में, अपना नाम और फादर्स इनिशियल वहाँ पे पोस्ट कर दीजिए, वहाँ से आपकी अटेंडेंस लग जाएगी। आज ऐसा ही है, आगे कुछ और होगा तो वो मैं बता दूंगी। तो as you know that in the syllabus we have the 4 units in your syllabus, and the 2 units is for solid state physics and 2 units for the statistical mechanics. So we have already completed the solid state physics and now the turn is for the statistical mechanics. So today now onwards we will start the statistical mechanics. And as you know that I have already told you this, that in statistical mechanics it is the when there are large number of particles. If we have large number of particles, a very large number of particles, then we cannot calculate the behavior of each particle. If we have very large number of particles, then we cannot calculate the behavior of each particle. In that case, what we do, then we have to take the average. So we do the average. We take the average behavior of the particles. Suppose we have a system in which there are only 5 particles, or let us say 10 particles. So in that case we can calculate, suppose we have to calculate the velocity, then we can calculate the velocity for each the particle. But if we have a very large number of particles, for example if we take the 12 gram of the carbon, then it is the one equivalent to 1 mole, and one, or let us say it is if the hydrogen gas, if we take the 2 gram of hydrogen gas, then it will have 1 mole of the molecular hydrogen gas, and 1 mole means it will be it has 6.023 into 10 to the power 23 molecules. So these are very large numbers, and if we want to calculate the particle for each molecule, then it is impossible. We cannot do this. We cannot calculate the velocity for the each particle of the hydrogen molecule for the 1 mole. And then what we will do, we will take the average, and that average calculation is known as the statistical mechanics. So what we do in the statistical mechanics, we study the average property. So you can note down that in statistical mechanics it is the study of the average behavior. It is the study of the average behavior, or average property. So you might have heard, or you might have studied that in the for the gas there is a root mean square velocity which is known as the RMS velocity. And then there is the maximum probability, maximum probable velocity. There is a term maximum probable velocity, means कौन सी velocity ऐसी है जो ज़्यादातर particles की है. So that is the maximum probable velocity. So what is this RMS velocity and the maximum probable velocity? These are the average behavior. We have not calculated the velocity of each 10 to the power 23 molecules, but we have taken the average behavior. So this is the method of the statistical mechanics. And if the larger be the number, more accurate will be the prediction. Larger be the number in our system, more accurate will be the prediction. So if we
take the statistical mechanics and we take very less number of the particles in our system, then it has no meaning. Suppose we are doing the calculation with the statistical mechanics and we are taking only the 10 particles, so this has no meaning, क्योंकि जितना कम पार्टिकल लेंगे उसका एवरेज उतना ही गलत सा आएगा. लेट अस टेक फॉर एग्जांपल, इफ वी टॉस अ कॉइन, if we toss a coin, then the coin has two faces, head and tail, head and tail. Then what is the probability of getting head? It will be half, and the probability for getting tail, it is again half. But if we coin the toss only, let us say for the 2 time, if we coin the toss for the 2 time, then ideally there should be one head and the one tail, but it is not always such case we get. ऐसा संभव नहीं है कि जब भी हम अगर 2 बार कॉइन को टॉस करें तो हमेशा हमें एक बार पहली बार हेड मिले और दूसरी बार टेल मिले. इट इज़ नॉट ऑलवेज लाइक दिस. ऐसा भी हो सकता है कि हमें दोनों बार हेड ही मिल जाए या हमें दोनों बार टेल ही मिल जाए. तो ऐसे केस में क्या होगा कि द प्रोबेबिलिटी विच वी हैव कैलकुलेटेड, द हाफ प्रोबेबिलिटी, दैट प्रोबेबिलिटी विल बी रॉन्ग. वो प्रोबेबिलिटी काम नहीं करेगी. ये जो हाफ हमने कहा वो हाफ नहीं हुआ. अगर हमें 2 बार टॉस किया और दोनों बार हेड मिल गया तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी 1 हो गई, जबकि एक्चुअली थ्योरेटिकली द प्रोबेबिलिटी शुड बी हाफ. बट इफ़ वी डू दिस एक्सरसाइज, if we do this exercise, let us say for the 100 times, if we do this exercise for the 100 times, then almost we can get that 54 times, let us say it is head, and then 100 minus 54, 46 times it is tail. So now if you calculate the probability, then this will be 54 divided by 100, and here it is the 46 divided by 100, means it is the 0.54, and here it is the 0.46. What should be the ideal probability? It should be 0.5 and 0.5. So this is the ideal. So we are very close to this ideal. 0.54 is very close to 0.5, and again 0.46 is very close to 0.5. But if we toss the coin only 2 times and we get 2 head, if we get 2 head, then the probability is 1 for the head, and probability for tail is 0. Probability for tail is 0. So this 1 and 0 is very wrong. This is very absurd answer if we compare it with the average. So what we can conclude from this, we can conclude that in the statistical mechanics we should have a larger number of the particles. So larger be the number of the particles, more accurate will be our prediction or our calculation. So one thing you have to keep in mind, that in statistical mechanics we have large number of the particles. So this is very important. Now when we do the statistical mechanics, so again we have the, in statistical mechanics also we have the 2 type of, we can divide it into the 2 category. Statistical mechanics, we can divide it into 2 category. So one category is the quantum and another is the classical. So the first category is the classical statistical mechanics, and another is the quantum statistical mechanics. In the classical statistical mechanics we have the Maxwell-Boltzmann distribution. Maxwell-Boltzmann distribution, ये आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा. Boltzmann distribution, or it is the Maxwell-Boltzmann statistics, and in short this is written as the MB statistics. And for the larger particles, comparatively larger particles, follow
the Maxwell-Boltzmann distribution. Larger particles means molecules of gas, or molecules of liquid. So this will follow the Maxwell-Boltzmann distribution. But when we come to the smaller particles, like the elementary particles, like proton, neutron, electron, so on, then we have the two type of the statistics. The one is the Bose-Einstein statistics. Bose-Einstein statistics. In short, it is known as the BE statistics. And in the second category, it is the Fermi-Dirac statistics. These are the name of the scientist, Fermi-Dirac statistics. Fermi-Dirac statistics means FD statistics. And in Bose-Einstein, so these quantum statistics are applied on the very small particles like the photon or the proton. So these are very small particles, and in such cases we cannot apply the Maxwell-Boltzmann distribution, that is the classical statistical mechanics. So we apply the Bose-Einstein and the Fermi-Dirac. And in the particles which follow the Bose-Einstein statistics, they are known as the bosons. And the particles which follow the Fermi-Dirac statistics, those particles are known as the fermions. So the example of fermion is proton, neutron, electron. These are the fermions. And the bosons, the photon. Photon is the boson. Since you don't have the much knowledge about the quantum mechanics, therefore at the present we cannot differentiate between the Bose-Einstein and Fermi-Dirac. अगर मैं उससे आपको बताऊंगी तो क्वांटम मैकेनिक्स से ही बताएंगे और वो फिर आपको समझ में नहीं आएगा उसका टर्म्स. तो अभी फ़िलहाल उसे छोड़ दीजिए कि व्हाट इज़ Bose-Einstein एंड व्हाट इज़ Fermi-Dirac. बस इतना समझ के रखिए फ़िलहाल कि इन द स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स वी हैव द वन इज़ द क्लासिकल and another is the quantum. In the classical we have the Maxwell-Boltzmann distribution, which is applied on the larger particles, and in the quantum statistics we have Bose-Einstein and the Fermi-Dirac, and which is applied in the smaller particle. So this is about the statistical mechanics. Now come to the next topic, which is the probability. 1 minute. So now let us start another topic, which is the probability. Now what is the probability? You know about probability, that probability of any event is, this is equal to the number of cases when an event occurs, and this divided by the total number of the events. So this is the probability. इसको आप लोगों ने मैथमेटिक्स में भी पढ़ा होगा. So suppose we have the probability of happening an event is equal to A, and probability of not happening an event is equal to B. So what will be the total probability? A plus B. A plus B is the total probability, which is equal to always 1. A plus B, which is always 1. Now if we toss a coin
then the probability is A1 plus B1. Now suppose we have another coin which is different, another coin which is different. Then what will have, there will be A2 plus B2, A2 plus B2, and here it is A1 plus B1. Now if we toss simultaneously, then what will be the number of events? It will be A1 plus B1 and then A2 plus B2. So the events are A1 A2 and then B1 B2 and then A1 B2 plus A2 B1. So what is the meaning of this A1 A2? A1 A2, let us say A is the head. Suppose A is the getting head and B is the getting tail. So A1 A2 means we have the two heads, मतलब कि दोनों जो कॉइन होगा उन दोनों में हेड आ जाए, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे A1 A2. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ B1 B2? B1 B2 मीन्स टू टेल्स, दोनों में टेल आ जाए. एंड व्हेन वी राइट द A1 B2, इसका मतलब कि फर्स्ट वाले में जो फर्स्ट है उसमें तो हेड आएगा, लेकिन दूसरा जो सेकंड है उसमें टेल आएगा. और जब हम यहाँ पे लिखेंगे A2 B1, तो इसका मतलब कि जो फर्स्ट होगा वहाँ पे टेल होगा और जो सेकंड होगा देयर विल बी हेड. So because these two coins are different, therefore we can differentiate between A1 B2 and A2 B1. क्योंकि दोनों अलग अलग कॉइन है, मान लीजिए एक गोल्डन कलर का है दूसरा कॉपर का है, तो हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि किस वाले में हेड आया था और किस वाले में टेल आया था. बट देयर इज़ अनदर सिचुएशन, एक दूसरी सिचुएशन भी हो सकती है. वो सिचुएशन क्या हो सकती है कि टू सिमिलर कॉइन्स, अगर दो सिमिलर कॉइन्स होंगे तो ऐसे में क्या होगा. लेकिन उसके पहले चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी. तो देखिए यहाँ पे टोटल 4 इवेंट्स हो गए. सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 head is 1/4, probability of getting 2 tail is 1/4, and the probability of getting head in first and tail in second, this is also 1/4, and probability of getting head in second and tail in first, this is also 1/4. So this is the probability. Now if we take another situation where the two coins are similar, जैसे हमने पहले कहा कि one is of gold and another is of copper, but now in this case both are the same. So what will be the condition? It will be a square plus b square plus ab 2ab plus 2ab. So a square means because a1 is equal to a2, b1 is equal to b2, so the probability of getting 2 head, a square means getting 2 head, it is again 1/4, and the probability of getting tail is again 1/4. But here the two will, we cannot differentiate between these two cases, that is a1 b2 and a2 b1, क्योंकि हमें पता नहीं कि कौन वाले में हेड आया कौन में टेल, क्योंकि दोनों कॉइन एक जैसे ही हैं. तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इनकी प्रोबेबिलिटी जुड़ जाएगी 1/4 plus 1/4, and therefore this probability will be now 2/4, that is half. So this is for the two similar coins. Now if we have another situation, so let us move to more complicated, and now we have the 3. In 3 we can write it as a1 plus b1, and then we have a2 plus b2, and then we have a3 plus b3. तो इसमें भी अलग अलग तरह की सिचुएशन होंगी. जैसे 3 हेड आ सकता है, 3 हेड मीन्स a1 a2 a3, and then we have the 3 tails, that is b1 b2 b3 and so on. 2 heads a1 a2
and third tail B3, and then B2 B1, इसको आप लिख दीजिए A1 and A3, and here A2 and A3. So these are the different combinations, and then we have A1 and 2 tail B1 B2, and then A2 A3. So here it is the B1 and B3, ये B2 होगा और ये B3 होगा, and here it is the B1 and B2. So 1 2 3 4 5 6 7 8. और कौन सी सिचुएशन हो सकती है इसमें? 1 2 3 3 6, हाँ टोटल 8, 5 6 7 3 4 5 6, हाँ 8 सिचुएशन है. तो इन सब की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/8 1/8. इन सब की प्रोबेबिलिटी 1/8 1/8 सबकी प्रोबेबिलिटी होगी. बट नाउ इफ वी टेक अ सिमिलर क्वांस, देन इट विल बी A plus B A plus B to the power 3, A plus B to the power 3. तो ऐसे में जब हम सिमिलर क्वांट्स लेंगे देन वी कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन दीज कंडीशन A1 A2 B3. मतलब अगर दो में हेड आना है तो ये तीनों की प्रोबेबिलिटी जुड़ जाएगी, एंड इट विल बी 3/8. और वैसे ही इन तीनों की प्रोबेबिलिटी भी जुड़ जाएगी, बिकॉज वी कैन नॉट डिफ्रेंशिएट कि किस में हेड आया किस में टेल आया, ये हम जोड़ नहीं सकते. सो इट विल बिकम 3/8. सो 1/8 1/8 3/8 एंड 3/8. तो ये एक हमने आपको 1 कॉइन का केस बताया, 2 कॉइन का केस बताया, और फिर हमने आपको 3 कॉइन का केस बताया. नाउ लेट अस डू इट फॉर द n कॉइन्स. फॉर द n कॉइन्स, so what will be the situation for the n coins, n similar coins, so it will be A plus B to the power n, A plus B to the power n. Now if we expand this binomially, then it will be nc0 A to the power n B to the power 0 plus nc1, then A to the power n minus 1 B to the power 1 plus then nc2 A to the power n minus 2 plus, sorry not plus, it is B to the power B square. And then let us write a general term ncr A to the power n minus r, and then B to the power r, n plus so on, and the last term will be ncn A to the power 0 B to the power n. हो सकता है आप लोगों ने इसको कहीं पढ़ा हो. And then what is this ncr? ये जो टर्म हम लिखते हैं ncr, what is the meaning of this ncr? So this ncr is equal to n factorial divided by r factorial and then n minus r factorial. Now what is the meaning of the factorial? N factorial means it will be n multiplied by n minus 1 multiplied by n minus 2 and then n minus 3 and up to 1. जैसे एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए अगर हमने लिखा है 8 फैक्टोरियल, सो 8 फैक्टोरियल मीन्स 8 then multiplied by 7 multiplied by 6 multiplied by 5 multiplied by 4 multiplied by 3 multiplied by 2 and multiplied by 1. So this is the meaning of the 8 factorial. Now you can derive this that NCR is equal to NC n minus r. So let us prove this. NCR means it will be n factorial divided by r factorial into n minus r factorial. And what will be the value of this NC n minus r? NC n minus r, this is the n factorial divided by n minus r factorial, n minus r factorial, and then n minus r minus n, that is again it will be r factorial. So NCR is equal to basically NC n minus r, दोनों की वैल्यू बराबर ही होती है. So now if from this expression,
ये जो हमने बड़ा सा एक्सप्रेशन लिखा है, ये वाला, ये जो बड़ा सा एक्सप्रेशन लिखा है बायनोमियल एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन क्या शो कर रहा है कि अगर मान लीजिए हमें निकालना हो कि वी हैव द n नंबर ऑफ कॉइन्स, देन हाउ मेनी टाइम्स वी हैव द n, अगर हमारे पास n माइनस r टाइम्स हेड है और r टाइम्स टेल है, सो व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट। ये जो एक पर्टिकुलर इवेंट है, ये एक जो पर्टिकुलर इवेंट है कि वी हैव दी n माइनस आर टाइम्स हेड एंड r टाइम्स टेल, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब हम ये जो NCR लिखा है यहाँ पे, NCR तो नंबर ऑफ द केसेस, NCR क्या शो कर रहा है, NCR शो कर रहा है नंबर ऑफ केसेस having situation a to the power n minus r, b to the power r, and if we want to calculate the probability, then probability is equal to the number of situation this events happen divided by the total number. So what will be the total number? Total number is equal to summation over r is equal to 0 to n NCR। अगर इसका हम समेशन करें फॉर ईच वैल्यू ऑफ r from 0 to n, r is equal to 0, 1, 2, 3 up to n, then this summation will come out as 1 upon to the power n। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक बार हेड आएगा और फिर वो बार बार, चूंकि हेड और टेल दो ही पॉसिबिलिटी है इसमें, तो 2 to the power n हो जाएगा। तो एक सिचुएशन और भी होती है कि आइदर आई से दैट टॉस single coin n times, and this is similar to a situation toss n coins once। दोनों एक ही बात है। अगर हम कहें कि एक ही कॉइन को n टाइम्स टॉस कीजिए और रिजल्ट को टेबुलेट कीजिए, या फिर हम ऐसा कहें कि n कॉइन्स को एक बार में ही टॉस कर दीजिए, सबको एक साथ कर दीजिए, तो दोनों की सिचुएशन सेम ही आएगी। तो जो टोटल होता है इवेंट्स, वो टोटल इवेंट्स इज 1 अपॉन 2 टू द पावर n। तो अब प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी विल बी so now the probability is NCR divided by 2 to the power n, NCR divided by 2 to the power n। तो ये होगी प्रोबेबिलिटी किसी एक इवेंट की। तो अब आप लोग ने, हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी आपने पहले से भी पढ़ी हुई हो और मैथ्स में निश्चित ही पढ़ा होगा आपने, प्रोबेबिलिटी आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब इसके बाद नाउ लेट अस टेक फ्यू क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस आज करते हैं प्रोबेबिलिटी के, उसके बाद फिर कल से फिर हम इसमें और आगे बढ़ेंगे। सो लेट अस, आई एम शोइंग यू दी क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को पढ़िए आप लोग। नोट कर लीजिए अपने उस पर नोट कर लीजिए। 8 similar coins are tossed for a large number of times. Calculate the probability of getting the hits of 5 coins uppermost। इसी में 3 डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। इसको अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, फिर इसका सोल्यूशन देखेंगे। 8 similar coins are tossed for a large number of times. Calculate
the probability of getting the hits of 5 coins uppermost, then the probability of most probable combination and the probability of least probable combination. तो क्वेश्चन आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, कोई एक बताइए, नोट कर लिया क्वेश्चन? So let us start with the first answer. The first answer, पहला A, the probability of getting the heads of 5 coins. So here n, जो हम NCR लिखते हैं, NCR में here n is equal to 8 and R is equal to, अगर हम कह रहे हैं कि हेड हमें 5 में चाहिए, इसका मतलब कि जो पहले वाली इक्वेशन थी उसमें कैसी सिचुएशन बनेगी, a to the power 5 and b to the power 3, a to the power 5 and b to the power 3. तो a to the power 5 के आगे क्या लिखा हुआ था, इट वॉज NC3, NC3 क्योंकि ये n माइनस आर होता है, तो NCR, और ये तब ये n माइनस आर बन जाता है और ये r ही रहता है. तो इसके लिए अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है. सो प्रोबेबिलिटी विल बी NC3 and this divided by the 2 to the power n. So what will be the NC3? NC3 is equal to n is 8. So 8C3 divided by 2 to the power 8. To the power 8. अब इसको आप लोग ज़रा कैलकुलेट कीजिए अपनी अपनी कॉपी में और मुझे जिसका सबसे पहले हो जाए वो आंसर माइक खोल के आंसर बताइए. लेट अस कैलकुलेट दिस. अपनी अपनी कॉपी में फटाफट कैलकुलेट कीजिए. 8C3 के लिए क्या लिखेंगे, इट विल बी 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 5 फैक्टोरियल, 8 माइनस 3 5 फैक्टोरियल इंटू 1/2 टू द पावर 8. इसको आपको सॉल्व करना है. सॉल्व करके बताइए, जिसका सबसे पहले हो जाए वो बताइए. किसी का हुआ? आवाज सुनाई दे रही है भाई तुम लोग को? किसी ने सॉल्व किया इसे? सो 8 फैक्टोरियल मीन्स इट विल बी 8 इंटू 7 इंटू 6. हाँ बताइए. हाँ वेरी गुड. 7/32. नाम भी बता दो बेटा अपना. अनुराधा. गुड, वेरी गुड. 7/32. और बाकी लोग देख लीजिए. 8 फैक्टोरियल मीन्स 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड देन 3 factorial. 3 factorial means 3 into 2 into 1 and then 5 factorial. So 5 factorial means 5 into 4 into 3 into 2 into 1. तो ये 5 factorial तो देखिए पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा. ये 5 factorial इस 5 factorial से कैंसिल हो जाएगा. तो जनरली इस तरह से लिखना भी नहीं चाहिए. इसके आगे 5 factorial लिख सकते हैं. ये 3 2 जा 6 यहाँ कैंसिल हो गया. एंड देन वी हैव 1/2 to the power 8. सो 2 to the power 8 मीन्स इट इज़ 16 into 16. तो अब यहाँ पे क्या क्या बच गया, 8 और 7. तो इसको 4 से काट दीजिए या 8 से ही काट दीजिए. सो 8 2 जस्ट ये हो गया. क्या आया मेरा? हाँ ये 7 आ गया ऊपर और नीचे 16 into 2 32 आ गया. सो इट इज़ 7/32. सो दिस इज़ द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट. सेकेंड क्वेश्चन ये कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ मोस्ट प्रोबेबल कॉम्बिनेशन. एक चीज़ हमने पिछले वाले उसमें आपको नहीं बताई, पिछले स्लाइड में. एक चीज़ आप और यहाँ पे नोट कीजिए कि जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी होती है, जैसे ये NCR है, तो इसमें मोस्ट प्रोबेबल में क्या होगा, व्हेन R इज इक्वल टू n/2.
व्हेन r इज इक्वल टू n बाई टू देन दैट विल बी द मोस्ट प्रोबेबल, मतलब जस्ट उसका आधा हो जाए। और लीस्ट प्रोबेबल क्या होगा? लीस्ट प्रोबेबल मीन्स जो हमने बायनोमियल टर्म लिखा था उसमें जो सबसे पहला होता है, लीस्ट प्रोबेबल मीन्स वन। लीस्ट प्रोबेबल इज ऑल्सो वन, ऑलवेज वन। वन क्यों? क्योंकि जब एन सी जीरो हो जाए, एन सी जीरो का मतलब हो जाएगा वन, या एन सी एन हो जाए, दिस इज इक्वलेंट टू एन सी एन, तो इससे वन आता है। तो लीस्ट प्रोबेबल हमेशा वन होगा, और जो मोस्ट प्रोबेबल होगा दैट विल बी व्हेन आर इज इक्वल टू एन बाई टू। तो अब आप जब मोस्ट प्रोबेबल के लिए कैलकुलेट करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू एट एन सी आर, पहले चलिए हम इसको लिख दें, पहले एन सी आर लिखना है अपॉन टू टू द पावर एन, तो इसको लिख लीजिए एन सी फोर, क्योंकि एट हमारा एन एट है तो इसको एट सी फोर डिवाइडेड बाई टू टू द पावर एट, ये हो जाएगा। सो इट इज़ द 8 फैक्टोरियल एंड डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल, and 8 minus 4 it is again 4 factorial and then divided by 2 to the power 8 means 16 into 16। अब इसको सॉल्व करके बताइए क्या आता है। इसमें एक चीज़ आप लोग थोड़ा सा ये कर सकते हैं कि जब जैसे नीचे जो भी बड़ा वाला फैक्टोरियल है, जैसे यहाँ पे 4 फैक्टोरियल है, या ऊपर जैसे 5 फैक्टोरियल था यहाँ पे, तो 8 को जब एक्सपेंड करेंगे तो इसको बहुत ज़्यादा मत कीजिए, इसको ऐसे बस कीजिए 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, और उसके आगे सीधे 4 फैक्टोरियल करके छोड़ दीजिए, और फिर नीचे लिख दीजिए 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो ये जो 4 फैक्टोरियल है ये जस्ट इससे यहीं पे कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा लिखने की उतनी ज़रूरत नहीं है। तो अब इसको कैलकुलेट करके बताइए व्हाट विल बी द आंसर, और जिसका आंसर आ जाए वो माइक खोल दीजिए। कितना आ गया? 7/64 आ रहा है। अच्छा कोई और भी बताइए। एक आंसर आ गया, एक आंसर आया यहाँ पे 7/64 आया है। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? गौरव। अच्छा कितना आया? 35/8। 35/8। 8। एक मिनट यहाँ पे 2 to the power 8 भी रहेगा, है ना, ये हमने नहीं लिखा लेकिन ये आ जाएगा यहाँ पे, है ना। 35 अपॉन, हाँ 35/128 आएगा, है ना। दिस इज़ द करेक्ट आंसर, है ना, ये करेक्ट है। ये बाकी गौरव तुम थोड़ा सा देख लेना, है ना, 7/64 जिसका आया है ना। हाँ ये यहाँ पे हमने ये छोड़ दिया 1/2 to the power 8, तो इसलिए उस बच्चे का भी शायद इसलिए गलत आया। तो 35/128 आ गया है। सो दिस इज़ द राइट आंसर। उसके बाद फिर जो थर्ड क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ लीस्ट प्रोबेबल कॉम्बिनेशन, तो वो प्रोबेबिलिटी क्या होगी बताइए। ये तो आसान है, तीसरे का आंसर बताइए। वन हो गया, है ना, नंबर ऑफ इवेंट्स तो 1 हो गया, एंड डिवाइडेड बाई 2 to the power 8, है ना, 1/2 to the power 8, क्योंकि हम यहाँ पे NC 0 लिखेंगे या NC n लिखेंगे उसकी वैल्यू 1 आएगी। 0 फैक्टोरियल मीन्स 1 होता है ना, 0 फैक्टोरियल मीन्स 1। तो ये 1/2 to the power 8 आया, तो ये आसानी से आ जाएगा 1/2 to the power 1/2 to the power 1/256। सो दिस इज़ द आंसर। थर्ड का आंसर ये होगा 1/256। ये सिंपल है ना, ऊपर केवल 1 ही है। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए। अब अभी अच्छा आप लोग ये बताइए, कोई अपना माइक खोल के आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने इस तरह के क्वेश्चन मैथ्स में किए होंगे ना। मैथ्स, हाँ मैथ्स में किए हैं, ठीक है। तो अब हम इसको और क्वेश्चन ना करके हम इसकी आपको PDF भेज देंगे, है ना, जैसे पहले भेजते थे। ये जहाँ से जिस बुक से हम आपको भेज रहे हैं वो बुक में देखिएगा मिस्टेक भी रहती है ना। जैसे आप आंसर कहीं कहीं देखेंगे तो वो मिस्टेक भी आएगी, तो वो मिस्टेक आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा और उसको चेक भी करते रहिएगा। तो ये सारे क्वेश्चंस जो प्रोबेबिलिटी के हैं वो हम आपको भेज देंगे। अब हम एक छोटा सा टॉपिक आपको इसी से रिलेटेड और बता देते हैं।
सो दैट इज द, जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि टॉसिंग द कॉइन, टॉसिंग द कॉइन, तो टॉसिंग द कॉइन में दो सिचुएशन होती है, एक मतलब हेड हो सकता है और दूसरा टेल हो सकता है। यहाँ पे दो सिचुएशन है। तो इसी तरह की सेम सिचुएशन होती है इफ़ वी से द डिस्ट्रीब्यूशन, इफ़ वी से द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन टू हाफ्स, टू हाफ्स, टू हाफ्स मीन्स कि अगर मान लीजिए कोई एक बक्सा जैसी चीज़ है, एक बक्से जैसी चीज़ है ये, और इस बक्से में अगर हमने टू पार्ट कर दिया, एंड इफ़ वी हैव द 100 मॉलिक्यूल्स, तो कितने मॉलिक्यूल्स इधर जाएंगे और कितने मॉलिक्यूल्स इधर जाएंगे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, है ना। मतलब ये बॉक्स 1 हो गया एंड दिस इज़ द बॉक्स 2। तो ये बिल्कुल जैसे ये हो गया कि बॉक्स 1 में आ गया तो मान लीजिए इट इज़ लाइक हेड, और बॉक्स 2 में गया तो इट इज़ लाइक टेल। तो इसका भी जो पूरा इक्वेशन है वो वही वाला इक्वेशन होगा, a प्लस बी टू द पावर n, है ना, a प्लस बी टू द पावर n, और वो जो डिस्ट्रीब्यूशन किया था वही डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होगा। तो अगर हम कहें कि इसमें से 55, अगर हम कहें कि 55 फर्स्ट बॉक्स में गए और जो बचे हुए 45 हैं वो सेकेंड बॉक्स में गए, तो इस सिचुएशन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम कैसे लिखेंगे, एन सी आर डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर n, और यहाँ पे n क्या है, n इज़ 100, और c क्या, r कितना होगा, r देखिए 45 होगा। अगर आप यहाँ पे 55 भी लिखेंगे तो भी आंसर सेम ही आएगा, है ना, बिकॉज एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। तो यहाँ 55 पे भी सेम आंसर आएगा, लेकिन हमारे इक्वेशन के हिसाब से यहाँ 45 आता है, क्योंकि हमें कैसी सिचुएशन चाहिए, हमें इस टाइप की सिचुएशन चाहिए, a टू द पावर 55 एंड b टू द पावर 45। तो ये सिचुएशन कब आएगी, जब हम यहाँ पे लिखेंगे n, जब हम लिखते हैं एन सी 45, है ना, तो ये वाली सिचुएशन आती है, ये 45 इस 45 से मैच करता है। सो 100 सी 45 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर n। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई कि इन द फर्स्ट बॉक्स वी हैव द 55 मॉलिक्यूल्स एंड इन द सेकेंड बॉक्स वी हैव 45 मॉलिक्यूल्स। तो प्रोबेबिलिटी कितनी क्या है, 100 सी 45 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर n, 2 टू द पावर n मीन्स 2 टू द पावर 100। सो ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो ये जो एक इसमें एक क्वेश्चन होता है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन टू हाफ्स। तो उस क्वेश्चन को करने का तरीका भी आपका बिल्कुल उसी तरह का होगा जैसे कि अभी आपने प्रीवियस क्वेश्चन किया है, उसी तरह से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। सो आई थिंक नाउ, अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे देख लीजिए कि जैसे हमने हेड और टेल किया, तो हेड और टेल में ए और बी हुई, ए मतलब ए हेड की प्रोबेबिलिटी और बी टेल की प्रोबेबिलिटी है, या हम ये कह सकते हैं कि ए इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड बी इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड, मतलब एक होने की प्रोबेबिलिटी है, दूसरी न होने की प्रोबेबिलिटी है। तो ये हमेशा हेड और टेल ही नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर हम डाइस लेते हैं, एक डाइस हमने लिया और उस डाइस में आपको पता है कि देयर आर नंबर 1 2 3 4 5 6, तो ए और बी को आप हेड और टेल की तरह न लेके ऐसे समझिए कि ए इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग द इवेंट एंड बी इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग द इवेंट। तो अब अगर हम यहाँ कहें कि 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी मीन्स ए, 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इट विल बी 1/6, और 1 न आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दैट विल बी द 5/6, क्योंकि एक बार आएगा और 5 बार नहीं आएगा। तो यहाँ पे ए और बी की वैल्यू क्या हो गई, 1/6 एंड 5/6। तो इस तरह से अगर डाइस के क्वेश्चन हो तो उसको इस तरह से सॉल्व करना होगा, और अगर क्वाइन के क्वेश्चन है तो ए और बी मतलब हाफ हाफ हो जाएगा। तो अब मेरे ख्याल से हमें यहाँ पे स्टॉप करना चाहिए, और आप लोग के जो फ्रेंड्स हैं उनको आप बता दीजिएगा, मैं ग्रुप में भी मैसेज डालूँगी कि 5 मिनट पहले तक
मतलब 5 मिनट जैसे 1 बजे का टाइम है, यही वाला लिंक रहेगा, सेम लिंक हम हर दिन यूज़ करेंगे। तो 5 मिनट पहले से ज्वाइन करना शुरू कर दें, हम भी 5 मिनट पहले से खोल लेंगे। और 5 मिनट मतलब कि 1 बज के 5 मिनट तक लोग ज्वाइन कर लें। हो सकता है कुछ बच्चे ज्वाइन करने से रह गए हों, क्योंकि जब हमने ये सब शुरू कर दिया तो इसमें फिर ज्वाइन कराना फिर मुश्किल हो जाता है जब पढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो आज थोड़े कम ही बच्चे हैं, लेकिन ये आप लोग उनसे मैसेज दे दीजिएगा अपने फ्रेंड्स को कि वो पहले आ जाएं, पहले ही सब लोग ज्वाइन कर लें, लेट ना करें, है ना, 5 मिनट के अंदर सब लोग ज्वाइन कर लें। तो अब आप लोग थोड़ा ये बताइए, कोई अपने माइक खोल के बताइए कि आप लोगों को कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हुई आज, जैसे ये जो हमने स्क्रीन दिखाया जो लिख रहे थे वो सब ठीक से दिख रहा था आप लोगों को? अच्छा, और आवाज़ क्लियर थी? चलिए ठीक है। तो मैंने ऐसे इसकी वीडियो भी बनाई है, और देखते हैं ये पूरे लेक्चर की। हालांकि वो बहुत ज़्यादा हो गया होगा, कितने एमबी का होगा वो देखना पड़ेगा। तो हम उसको वहाँ क्लासरूम में या तो अपलोड कर देंगे, अगर अपलोड हो जाएगा तो, है ना। तो बाद में आप इसको रिवाइज भी कर सकते हैं। तो ठीक है फिर, है ना। तो आज के लिए अब ये ख़त्म करते हैं, और फिर इसको अगले दिन करेंगे। अब आप लोग लीव कर लीजिए, मैं ज़रा चैट बॉक्स में जाके आपके अटेंडेंस हम